Okay, so this is the second chapter, past. So I'm not going to ask you any question at this moment today, but I'm sure that the first chapter, whatever information you have in your copy, you are aware of it. Okay? So now we will start with, as you know, the strategic management process. It starts with strategic intent. There are four important things in formulation. One is the strategic intent, that is formulation. So you start one by one. Just first of all, you have to see that what is this strategic intent. And as per your syllabus, it is mentioned that organizational strategy. As I mentioned there, organizational strategy, but generally, when you are writing the books or we are giving the information, so we are putting it the strategic intent. And intent, strategic intent generally means the strategic error. And as I already gave you that mantra, recollect the past, analyze the present. So this is, it is strategic intent. Ultimately, you can consider the recollect the past. Why it is called recollect the past? Because I can consider this organization already developed. Suppose an organization already developed, so definitely this organization must have some kind of vision, objective, goals, activities. And then gradually they can improve it. Just imagine the Tata Steel. Say more than 100 years ago when it was started, that time there was nothing in Jamshedpur and it was called the Kalamati Desh. It was not that Jamshedpur that time. It was called Kalamati. You just read the history of Jamshedpur. And then the Persian people, J.R.D. Tata and their group, they came to Jamshedpur and they observed that huge resources are there. People are almost, the tribal people, very people are very much innocent people, very much tribal oriented people. So they were so intellectual, by seeing that area, they understood that one day this land can be a gifted land. So all the way from Parsi or Persian context, they came to Jharkhand. And that time, of course, it was not Jharkhand, it was what? It was part of Bihar. And they started thinking that how they can utilize the resources. How they can utilize the resources. And gradually they established this entire environment. But again, the day he was thinking that that I should establish some kind of emperor over here, that vision, it is there, but it is very much fit. Every time that people came and they tried to understand that this vision, how much it is fit with the current context. And then they revised it, they add some point, they revise it, they deduct some point. It is as per what? As per the present context. Because our mantra is what? Recollect the past and analyze the present. So whatever past is there, I should not forget. But again, side by side, I have to see how much it is fitting in the present context. On the basis of that, what I will do? I will do for the job. अभी हम कहाँ हैं? आपको कहाँ? ये तो है, ये सिंपल मंत्र है, ये मंत्र हमको याद रखना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? पहले हमको थोड़ा सा पीछे देखना होगा, वर्तमान को देखना होगा और भविष्य में हमको सोचना होगा कि जो मैंने आपको किया था, वही हम लोग एक करके हम लोग आगे, ठीक है? So from the picture, what you can see. So this person, when that he is trying to put forward his steps, so definitely he is looking something. He is looking something that हमको उसको जाना होगा. सुबह में हमने जब उठा, कल हमारा कन्वोकेशन था, दुनिया भर का रिस्पांसिबिलिटी था, रात में 11 बजे हमने घर गए, ठीक है? After 11, I was late and then today morning when I just wake up, immediately I thought that I have to go to Bombay. But see,
strategic management last 25 years I am reading this one. Right? I have 2-3 books also. But again, you don't believe that, from 5:30 to 8:30, 3 hours I studied this one. Tell me what? Sir, आपको क्या एक बात करने के लिए तो 3 घंटा पढ़ना होगा? Yes, I think so. I think so. Because whatever knowledge you have, ultimately you have to refresh it. कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं. Hard time you have to refresh it. You know what? So that you can build the right data. Yes. So that's why it is very important. But again, you see that I remember that I have to go to problem. So similarly, this person, when he or she is moving ahead, she must know that where she should go. And then she will decide whether I will go by walking, or I will go with the transportation, whether I will go alone, or I will take some kind of support from other side. Everything. Whether I take my ticket with me, or I will go empty box. So everything is there. So that will be different. Alright. So person must have some kind of look, vision that where I have to go. Okay, तो वो सारा चीज मैंने आपको आज दिखाएंगे और सिखाएंगे. केस स्टडी आप डिस्कस करेंगे. एक छोटा स्टोरी है वो भी हम लोग पढ़ेंगे. उसमें क्या होगा हम लोग को पता चल जाएगा कि एक्चुअली स्ट्रेटजी में होता क्या है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So these are the things we are going to learn from this chapter. First one is, according to your chapter, it is mentioned that vision and mission statement first, but I put this one first because I have to know first of all what is strategic intent. Then only I will go this side, right? So I put this one, what is strategic intent and strategic hierarchy. Next one, vision and mission statement. We will see some examples today. Okay. Next one, objective versus goal. Very frequently we are using this word, goal and objective, but ultimately तो different क्या है, after क्या है, सब देखना होगा. उसके बाद जो है strategic decision making में जो आपका approach है, उस approach को हमको देखना होगा. एक है adaptive approach, planning approach, and that is entrepreneurial approach. है ना, वो भी हम लोग example के रूप में देखेंगे तो हम लोग का क्या होगा पता चल जाएगा. ये why strategic decision is so important. तो ये सारा चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. अभी देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, बहुत से आपको सिर्फ सुनना है, एक्टिवली सुनना है और कुछ चीज आपको नोट करना है जो आपको लगेगा हाँ ये इम्पोर्टेंट. ठीक है, पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन में सोचते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज स्ट्रेटजी. See, the first point is maintained. Every organization exists and functions to realize some dreams and aspirations. पिक्चर में हमने क्या देखा था? वो बंदा जा रहा है, उसका मतलब कुछ तो उसका ड्रीम है, कुछ तो एस्पिरेशन है. मतलब जो भी है, छोटा होगा, बड़ा होगा, कुछ भी हो, कुछ तो है. अभी समझे रिक्शा पर जो है, वो बंदा रिक्शा के सेंटीवियस कॉलेज में ऐसे खड़ा है. कम्युनिकेशन में एक भी आदमी बाहर में नहीं है, वो बंदा क्यों? उसको तो कुछ आने पड़ा हो, वो भी एक उद्देश्य लेके विजन लेके उधर खड़ा है. नहीं सेंटीवियस कॉलेज में कभी कोई आदमी आ सकता है, इसीलिए हमको इधर वेट करने से क्या होगा, कम से कम एक पैसेंजर हमको मिल सकता है. उसमें 20 रुपया अगर मिलेगा तो मेरा बच्चे लोग जो घर में है कम से कम तो वो ही तो पाएंगे. इसी तरीके का कांसेप्ट इज देयर. ठीक है, maybe you can say unconscious, preconscious or conscious mind. There are 3 minds are there in the brain. Conscious mind, preconscious mind and unconscious mind. तो उसमें आपको कभी-कभी ऐसे होता है जो आपने मालूम ही नहीं आप कहाँ खड़ा हो और क्या करना शुरू कर दिया. Because conscious mind, unconscious mind and preconscious mind. ठीक है, तो ये हो गया आपका मैंने जो बोल रहे थे. Every organization exists and functions to realize some kind of dreams, okay, some kind of dreams and aspirations. These dreams and aspirations are expressed in their strategy. ये जो ड्रीम और एस्पिरेशन है, यही चीज को हम लोग स्ट्रेटजी इंटेंट में रिव्यू करते हैं. वन टाइम आई कैन रिव्यू एस्पिरेशन और ड्रीम
इसका मतलब तो बोल रहा है, इसका मतलब चाहता है डॉक्टर बनो, लेकिन आप क्या चाहते हो? व्हाट यू वांट टू? मेरा डैडी मानता है कि हमको डॉक्टर बनना है, लेकिन हम चाहते हैं हम एक प्रोफेसर बने। तो वेयर इज माय इंटरेस्ट? ना वो जो एस्पिरेशन है, वो जो ड्रीम है, उसको क्या करना होगा? कोट एंड अनकोट रिव्यू करना होगा। So you see that the dreams and aspirations are expressed in the strategic intent. Second point, organizations state at many levels what they wish to achieve. Therefore, there is a hierarchy of strategic intent. Strategy में एक hierarchy है, मैं आपको अभी दिखाएंगे तो क्या वो hierarchy है. Next one, establishing of strategic intent is the first phase of strategic management process and it serves as the base for the other phases. हमने क्या बोला था पेजेस? फर्स्ट पेज क्या है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट, उसका बाद एनवायरमेंटल शेयरिंग, उसका बाद स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, उसका बाद इंप्लीमेंटेशन, उसका बाद इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो ये जो एसएमपी है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, उसमें फर्स्ट फेज क्या है? आपको देखना होगा इसका जो हायरार्की है। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि ये जो कांसेप्ट है ये कौन दिया था? कैरी हैमिल एंड सीके प्रहलाद, ये दो बंदा जो है ये कांसेप्ट को जन्म दिया था इन द ईयर ऑफ 1989। आपका अभी जन्म का डेट हमको लगता है उसका बाद में है ना? तो ये सोचो आपका जन्म से पहले ये जो गुरु जो है ये कांसेप्ट को इतना मोटा-मोटी इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है। देखते हैं अभी जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट है क्या चीज, एक बार पढ़ लो, उसका बाद जो है इसका पूरा क्लास नोट तो मैं आपको दे ही देंगे, सिर्फ एक बार पढ़ लो, इसको समझो क्या है डेफिनेशन। You see that strategic intent is the term used to describe the aspirational plans, overarching purpose of intent, direction of journey needed to reach an organization vision. Means it is a complete strategic hierarchy of an organization. Start with its vision, values, mission, business definition and objective are established. हर ऑर्गेनाइजेशन का विजन से स्टार्ट होता है, वैल्यूज से स्टार्ट होता है, मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है। ये सारा चीज को लेके वो लोग चलते हैं टू अचीव समथिंग। और अगर ये ठीक से नहीं होगा, अगर ये इंसान को जो इंसान उस ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ा हुआ है उसको अगर समझ में नहीं आएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता है। आप कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन विजिट किया होगा? कोई एनीबॉडी विजिट ऑर्गेनाइजेशन? यस सर। तो आपने जब रिसेप्शन में किया तो आपको सबसे पहले क्या नजर आया? लोगो और एकदम आ जाएगा। रेलवे स्टेशन में जाइए, रेलवे स्टेशन आवर विजन, टाटा में जाइए आप आवर विजन, यू रखते हो लोग सामने से कि आपने जितना बार उसको देखोगे उतना ही आप इंस्पायर होगे। फिर अकॉर्डिंगली उसको पास इस शेपिंग योर पर्सनालिटी। जितना बार आप विजन को पढ़ोगे, जितना बार आप मिशन को पढ़ोगे उतना आप क्या करोगे? अपने को इनवाइट करोगे। That's why each and every organization they are keeping their vision, values, mission in front of the reception office or in the front office. Why? Because when the people are coming, let them understand that what is our vision, what is our mission, and what is our objective, goal, target. So it is keep on inspiring to everyone. Motivating, yes. Always motivating. So, but it maintains some hierarchy. ऐसे नहीं है खिचड़ी बन जाता है, नहीं. इसको क्या कुछ मेंटेन करना पड़ता है. पहले तो आपको विजन रखना होगा, उसका बाद उसको खोजने के लिए आपको कुछ मिशन रखना होगा, मिशन को मिलने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा, कुछ गोल सेट करना होगा, गोल को करने के लिए कुछ टारगेट रखना होगा और टारगेट के लिए कुछ एक्टिविटी आपको करना होगा। बिकॉज़ अल्टीमेटली प्लान मस्ट बी इन एक्शन मोड। आपने ड्रीम की दिखा, आपने समझो आप हॉस्टल में सो के आपने डेट जो बोलते हैं ना डे ड्रीमर,
आपने सोच रहा है आप एक ताज बेंगल होटल में आप HR मैनेजर है, हमारा पास दुनिया भर का स्टाफ है, हमको जो खाना पसंद है वही खाना सबसे पहले हमारा टेबल में आता है। ये सारा चीज आप सोच लो सोते भी, अगर इसको हकीकत करना है तो आपको क्या करना है? आपको कुछ प्लान करना, आपको कुछ एक्टिविटी तय करनी है, आपको क्या करना है? उसे अचीव करना होगा, देखिए इसमें हमारा पूरा कुछ नहीं है, कोई बोल रहा है गोल, कोई बोल रहा है स्ट्रैटेजी, कोई बोल इसलिए आपको कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन हमको वो पता करना चाहिए कि विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, एक्टिविटी क्या है और इसका फाउंडेशन क्या है। ये क्या करने के लिए हम सबसे पहले जो फेस को स्टडी करना होगा वो है स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ते देखिए कितना कमाल का पिक्चर आपको मैं दिखाएंगे अभी। देखिए a hierarchy of strategic intent. The terms vision or goals, objective and plan targets are used many a time interchangeably. However, in corporate literature they are often used distinctly. सबसे पहले कौन आता है? मिशन। ये आपके लिए एक छाया बनता है, एक पेड़ बनता है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपका पास वो मिशन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसको आपको रखना है। सबसे पहले आता है विजन। वो विजन को अचीव करने के लिए क्या होता है? विजन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। उसका बाद आता है आपका गोल, उसका बाद आता है टारगेट, उसका बाद चेन ऑफ एक्टिविटीज, उसका बाद आता है परफॉर्मेंस मेजर इन द लाइन ऑफ व्हाट? सबसे नीचे कौन सा है? बजट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? विजन तो है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए। वो क्या है? देखिए आपका पास दुनिया भर का प्लान है, दुनिया भर का स्ट्रैटेजी है, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो है वो अगर नहीं रहेगा तो आप कैसे बढ़ोगे? आपका बहुत सारा सपना है, लेकिन उसको हकीकत में लाने के लिए आपको वो भी सोचना होगा हमारे पास पैसा। तो पैसा इज नॉट एवरीथिंग, बट नो टू अचीव एवरीथिंग I have to give some kind of importance to my mind endeavors. इसीलिए देखिए सरस्वती जी है, शिव जी है, पार्वती जी है, गणेश है, कार्तिक है, लेकिन सबको लेके जो चलते हैं वो है लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी को आराम से रखना चाहिए, ये आराम से रखना चाहिए कि वंस लक्ष्मी जी चले गए अपने घर से तो शिव जी भी आधा हो जाएगा। इस वो जो है पॉइजन पी लेगा शिव जी, लेकिन वो बोलेगा भैया हम क्या करें? इसीलिए वो आग से रखना चाहिए और सब लोग उसको सलाम करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आराम से रखते हैं। हम लोग जो रिलायंस के जो मालिक हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, उनके पास तो कितना धन है, कितना पैसा है, लेकिन आप अगर पुलिस को बोलोगे कि ये 10 रुपया मैंने आपको दिखाया इधर रखे है, आप इसके ऊपर जाके कर जाओ, कैसी करेगा? उसका हिम्मत होगा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो रुपए नहीं है, वो क्या है? लक्ष्मी मांगा है। तो मां को हम कैसे करते? कभी नहीं कर सकते। सोचो कैसे? इसीलिए जो है बातचीत को समझाएं फाउंडेशन के रूप में रखा जाता है। उसका ऊपर जो है कितना भी करो, और ऊपर में क्या है? विजन। तो बजट एंड विजन, इसका अंदर में कितना सारा खेल होता है, लेकिन आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि आपका विजन क्या है और आपका बजट क्या है। तो समझ में आया? डायरेक्ट समझ में आता है, हम लोग उसको आराम करते हैं ये क्या है, ठीक है? सो now, therefore, the strategic intent of an organization represents what an organization wants to become in future. It reflects the desire and end results. It has wide implications and meaning for strategic management of an organization. The main function of strategic intent are what? The first one is desired destiny.
Second one, sense of direction. Third one, sense of discovery. And final one, result oriented culture. एक कदम करके आप आगे बढ़ोगे, मतलब आप एक डेस्टिनी डिजाइन करने के लिए जाते हैं। दूसरा है आपका डायरेक्शन कौन सा होगा, आप बैकवर्ड जाओगे कि आप फॉरवर्ड जाओगे, क्या आपने साइड में जाओगे, ये इसका याद है आपको? तो उसको नेक्स्ट क्या है, सेंस ऑफ डिस्कवरी, न्यू थिंग्स आपको आना है। तो दिन मैंने डेट में आपको क्या दिखाया था, जो दो विंग है, एक है रिस्क, एक है रिवॉर्ड। रिस्क नहीं लोगे तो आपको रिवॉर्ड आएगा। And next one is called result oriented culture. तो बस एक कल्चर तैयार करना होगा जिसमें कुछ रिजल्ट है। Of course that must be positive result. अगर सर हम सुबह में दारू स्टार्ट करेंगे, शाम तक दारू पिएंगे, मेरा कल्चर है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि यही मेरा कल्चर है, ये कल्चर आपको क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा। कुछ भी नहीं करेगा आपको। ओके, सो आप उसको मत देखो, उससे बड़ा जो है प्रॉब्लम है, आप हमको देखो। तो क्या हुआ, ओके, सुबह में दारू पीता है, शाम तक दारू पिएंगे, ये मेरा कल्चर है। लेकिन ये कल्चर नेगेटिव कल्चर है, ये पॉजिटिव कल्चर है, ये आपको खत्म कर देगा। So I have to generate such kind of culture, that culture will be some kind of push, some kind of positive attitude or positive. That is created here, the result created culture. और ये सारा चीज आपको मिलेगा जब आपने वो स्ट्रैटेजी इंटेंट को ठीक से फॉलो करोगे। आप अगर ध्यान दोगे तो इसमें दो चीज लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। You see the arrow? It is called formulation. And it is called achievement. What does it mean? Vision helps to formulate. Vision helps to formulate. Objective helps to formulate. Goal helps to formulate. Target helps to formulate. Activities comes to performance measure, and of course the budget. Similarly, if you go from this side, budget helps to achieve performance. Performance helps to achieve the activities, target, goal, objective, mission and vision. तो दो चीज को आपको एग्जामिन करना होगा जब आपने विजन को रखोगे आपका सामने। What is the link between this? मैंने आपको लास्ट स्लाइड में अगेन इसको दिखाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें रिलेशन है कि नहीं है। और ये खिचड़ी मात्रा, इसको कभी भी इस्तेमाल करने से पहले एक बार सोचो कि ये मेरा विजन है या ये मेरा मिशन है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है ना ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है ना ये मेरा एक्टिविटी है। जैसे उस दिन आपको मैं समझाया था, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी में अंतर है, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी में अंतर है। तो उसको आपको प्रोफेशनल जब आप कोर्स कर रहे हो, आपका यंगर ब्रदर सिस्टर अगर आपको पूछेंगे कि सर ये विजन क्या होता है, तो आपको क्लियरली इसको एक्सप्लेन करना होगा, वो भी ऐसे एग्जांपल देते हुए जो बंदे को समझ में आ जाए। व्हाट इज विजन एंड व्हाट इज मिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक स्टोरी पढ़ते हैं। विजन को मालूम है, तो विजन से पहले एक स्टोरी पढ़ो। इधर टीचर बन, ऐसे पढ़ो जैसे दूसरे को समझ में आए। A man was cutting stones in stone quarry. A traveler was passing the stone quarry and seeing the man cutting stones, asked him, "What are you doing?" The man was irritated at being disturbed and said, "Can't you see I am cutting stones?" When the traveler had gone some additional distance, he saw a second man doing the same and he asked again, "What are you doing?" The man looked up, smiled and replied, "Sir, I am earning my bread." Further on, the traveler came across another man cutting stone. When he was asked, "What are you doing?" the man straightened up and proudly replied, "I am building a temple." अजी, आपका नाम क्या?
आपका है क्लास में, लेकिन आपका माइंड उधर नहीं है। प्रॉब्लम है। बताओ ये स्टोरी का मतलब क्या है? समझ में आया स्टोरी? नहीं आया समझ में? अच्छा किससे समझ में आया स्टोरी? अब बताओ। इनको नहीं समझ में आया। सर इसमें वो तीनों का दिखा रहे हैं, तीनों का रीजन क्या है? नहीं तो आपको तो बाद में पूछेंगे। हमसे एक स्टोरी पूछा है, स्टोरी है क्या? ये स्टोरी है क्या? This story of three people is doing the same work. एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था सीधा। आप सुनो, है ना? सुनो, आप मैं पूछेंगे उसको जवाब देना होगा। कंस्ट्रक्शन काम दुनिया भर में चलता है। एक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन काम में जब चलता है तो हम लोग क्या कहते हैं, लेबर लोग जो है पहले तो स्टोन काटते हैं। Yes, sir. उधर बैठ के तीन बंदा जो है, ये बंदा इधर, एक बंदा उधर, एक बंदा उधर, है ना? और लोग स्टोन को काट रहा है, छोटा-छोटा पीस बना रहा है। अभी तो दुनिया भर का मशीन हो गया, लेकिन समझो इस स्टोरी जैसे है, जैसे तीन बंदा इसको जो पीछा जो पत्थर है उसको तोड़ रहा है, ठीक है? तो इंजीनियर पहला बंदा का पास जाके पूछा क्या कर रहे हो? तो बंदा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, बाबू तुम्हारा दुनिया में तो जो खुदा ने तो जो आग को दिया है, तुम नहीं देख रहे हो जानो क्या कर रहे हैं? तुम नहीं देखते हो? What is the can't you see that I was breaking the stone? सोचो और परसेप्शन सोचो, ठीक है? तो अंदर वाला हो गया। नेक्स्ट आदमी का पास सेम क्वेश्चन पूछा, भैया काम क्या रहे हो? बोलता है हमारी में ग्रेट। See the perception of the first person, see the perception of the second person. Third person का पास किया, भैया काम क्या रहे हो? उन्होंने इरिटेट भी नहीं हुआ और एक भी नहीं बोला क्या है मानी कर रहे हो, उन्होंने क्या बोला? अभी बताओ कि तीन आदमी का अंतर क्या है? सोचने का चीज है। लास्ट वाला सीक्वेंस विजन है, उसको क्या करना उसको पता है। तो सेकंड लास्ट वाला है, उसको ये पता है कि उसको वो क्यों कर रहा है उसका, उसको ब्रेड चाहिए। थर्ड वाला जो है उसको उसके पास सिर्फ एक्टिविटीज है सर, उसके बाद अगर नहीं है इसको मैं इतना ना सोचता हूं दुआ करता है। हेलो आप जोर से नहीं, मतलब जोर से यस Sir, the first man had nothing, it's just activity for him, and the second one is doing the work for himself and his family for earning bread, and the third man has a vision of building a temple. the second person will do all the great to say all First one has no target. The second one has a target, but he doesn't know how to achieve it. But in this situation, he has a target, he has a way to achieve it, and he knows where to start and what and I am doing. अजीत you see मैं not feeling well क्या हुआ? चलिए बताओ क्या? What is this story all about? We are using this, what I done story in different purpose. Like, as I told you that in the game, 9 साथी को जो आपने 9 charts के line में जो काम करना। So we are applying this echo story for different purpose. When I am teaching organizational behavior, that time I am considering it as the perception for the different people having different perception. But when I am giving it for strategic management, so that time what you can see that ultimately the third person he have a complete sense. He is not considering as a activity of this. Side by side, he is also considering that how best way this activity can give the results to the organization. That's why he is telling that it is not only I am doing something like
what is vision. Is there any generator system here? Yes, sir. DG. Should I connect again? Okay, so you see that this story ultimately, what is the lessons we are getting from this story? You see that the person building the cathedral or the temple had a vision that would make his performance outstanding in comparison his compatriots. Building this type of motivation is what an organization looks at in his vision statement. देखो जिसका विजन है उसका परफॉर्मेंस भी वैसे ही रहेगा। जो वाला सोच रहा है कि ऐसे दीवार को स्टोन काटना है उसका जो पीसेस होगा, और जो बंदा सोच रहा है कि मेरा ग्रेड दे रहा है तो हम उसको अच्छा से करना होगा तो उसका जो स्टोन पीसेस होगा, और जो बंदा सोच रहा है कि स्टोन से एक टेंपल बनेगा रेस्टोरेंट देगा तो उसको जो है परफॉर्मेंस में भी अंतर आएगा। तो इसीलिए हर आदमी को क्या होना चाहिए? हर आदमी को ये सोचना चाहिए जो मैं कर रहे हो इसमें हमको ध्यान लगा के करना होगा और रेस्पेक्ट के साथ ही करना होगा, बिकॉज दैट इज द व्हाट वी आर कंसंट्रेटिंग द गॉड ऑन नॉलेज ऑफ विश्वकर्मा. So if we can just think about it and if you make ourselves in such a way, so definitely it will be a very good performance. तो विजन के साथ साथ परफॉर्मेंस का भी एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन हर टाइम विजन को डेवलप करता है, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर सो दैट पीपल कैन गिव देयर 100% परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी. ठीक है, नाउ वी कैन सी दैट व्हाट इज विजन. Here it is coming both the sides, I don't know why. Okay, what is vision? You see, the vision is what do we want to become. This is the simple answer. The vision is what do we want to become. What do we want to become? इसमें बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया है. देखिए, vision may be implicit, a dream or a mental picture, or explicit, a written statement that is inspired across the organization, across the entire organization. Next one, you see, vision is the guiding philosophy stemming from stemming from core beliefs and values. Next one, vision is a source of inspiration to members of the organizations. It encourages them to give their best towards the organization's success. Finally, vision articulates the position that a firm would like to attain in distant future. हमको कहाँ जाना? So that is the ultimate, हमको कहाँ जाना है. कैसे जाएंगे तो बाद में सोचेंगे, लेकिन हमको एक सोचना है हमको कहाँ जाना है, तो हमने जाना चाहते हैं. So for that purpose, you see, and it is clearly mentioned that vision is a source of inspiration. Vision is a source of inspiration to members of the organization. It encourages them to give their best towards the organization's success. जो बंदा थर्ड पर्सन है उसको क्या वैल्यू सिस्टम है, जो हमारा स्टोन कैसे काटना होगा जो एक लेवल तक ऊपर पहुंच सके. हम लोग क्या देखते हैं, कभी भी ब्रिज बनता है तो 2-3 दिन का 7 साल के बाद वो क्या होता है
कितना आदमी का देहांत हो जाता है, कितना परेशानी आ जाता है, पूरा पैसा बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो विजन नहीं था कि एक दिन एक ब्रिज बनेगा और उतना सारा बच्चे लोग यहाँ से ट्रैवल करेगा, वो सोच वो लोग का क्वालिटी ऑफ वर्क। So you see that ultimately what is vision? Ultimately it is a very important part for each and every person in this world, and it is clearly mentioned that vision articulates the position that a firm would like to attain in the distant future. यदि आपके आपका IHM, ये IHM आपके की कौन है? इसका जरूर कुछ विजन होगा, आपका प्रिंसिपल का जरूर एक विजन होगा कि आपका 15 years इंस्टीट्यूट कहाँ जाना चाहिए। एक्साइजेस 1955 में हुआ था, स्मॉल सेंटर, सेंट जेवियर्स कॉलेज से एक छोटा सा सेंटर का रूप में बना था, एक्सटेंशन। आज ये हो गया वर्ल्ड क्लास सेंटर हो गया। कैसे बन गया इतना जल्दी, इतना टाइम में? सिस्टम इसका विजन अगर देखोगे, इसका जो है ना प्रॉफिट नहीं है, इसका सर्विस है। ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क, नॉट साइंस, ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। We always believe that how we can give service to others. तो वो जो सोच है, वो सोच जो है उसको बोला जाता है विजन, और वो विजन आपके सामने जो हर टाइम हर इंसान को इंस्पायर करता रहेगा, इंस्पायरिंग। देखिए अभी 3-4 एग्जाम्पल है और समझो। बैंक ऑफ बड़ौदा to become a technology enabled customer centric financial service organization. बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुना है? यस सर। अल्टीमेटली इनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये देखो कितना स्पेसिफिक है। सबसे पहले तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जानते हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं दी है, हम क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वो क्या लिखा है? To become a technology enabled customer centric financial service organization। मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो फंडामेंटल थिंग है, उसको भी हम नहीं भूलेंगे और हमने ऑब्वियसली सम काइंड ऑफ बेस्ट सर्विसेज टू माय। तो ये अगर कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टाफ पढ़ेगा तो वो कुछ इंस्पिरेशन आएगा नहीं है? 100% है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट इसी हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपने लाइफ बाय साउथ का नाम सुना होगा, जो दुनिया मतलब भारत का कोई भी रूरल एरिया में आप जाओगे तो कुछ मिले या नहीं मिले, just imagine what is their vision statement. Very simple, basic and very concise to meet everyday needs of people everywhere. follow ना बड़ा कंपनी, लेकिन उनका विजन देखो उससे बड़ा। वो क्या बोलता है? ये भारत में एक-एक कोना में एक-एक आदमी को हमको साफ करना है, तो सुरक्षित रखना है, सुस्त रखना है। Because their product is cosmetics and this consumer durables, daily use. So can you imagine that what is the vision? You can see that. And this vision, always encouraging that the entire workforce for there. ये आपको एक प्रोडक्ट तैयार करना होगा, पैसा नहीं, आपका प्रोडक्ट जो है भारत का हर कोना में जो है एक-एक बंदे को साफ करना होगा। This is their vision. Next one you see that ITC Limited. What is that? Sustain ITC's position as one of the India's most valuable corporation through world-class performance, creating growing value for the Indian economy and the customers, companies. उनका विषय है कि दुनिया में आपको नंबर 1 बनना है। हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, हमारा जो स्टेक होल्डर होगा वो हर टाइम सेटिस्फाइड। इंडियन इकोनॉमी नेशनल की जो हमारा देश का इकोनॉमी है वो भी आशीर्वाद आता किसका? ITC अगरबत्ती का नाम क्या है? ITC अगरबत्ती का नाम मंगल जी। तो
प्रोडक्ट नेम भी है वो भी कितना इंस्पायरिंग है। कभी आपने सोचा कि आटा का नाम आशीर्वाद हो सकता है? आटा का नाम कभी आशीर्वाद हो सकता है? ये हम लोग कभी सोचे थे? लेकिन आईटीसी प्रूव करते हैं तो ये बेसिक It's a basic. Just imagine how they are keeping their product brand as well as their because of their vision. Next क्या है? Last क्या है? Dalo company का नाम सुना होगा? What is their business statement? Getting the health and well-being of every household. ये बिजनेस स्टेटमेंट इतना स्पेसिफिक है लेकिन जितना आप सोचोगे जितना आप इसको पढ़ोगे एज ए मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन यू विल गेट सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन सम एस्पिरेशन यू विल गेट सम काइंड ऑफ ड्रीम। हमको इसके लिए क्या करना ड्रीम में आपको ड्रीम है सोचो आप ऐसे एक ड्रीम है जो अब आप में सोचोगे कि इसमें आपने और क्या कर सकते हैं व्हाट यू कैन डू मोर ऑन। So this is, what we can say that, the vision. Now we can say that, what are the essential of a good vision. एक vision statement जब बनेगा तो उसमें क्या क्या चाहिए? पहले बात तो ये है ये बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। विजन जो है ऐसे होना चाहिए जो रियलिस्टिक होना चाहिए जो हो सकता है। अभी हम दिन में सोचते हुए सोचेंगे कि हमको पायलट बनना है और हेलीकॉप्टर चलाना है, ये संभव नहीं होगा क्योंकि हमने सब कुछ सीखा ही नहीं और अभी हमारा उम्र नहीं है उसको सीखने के लिए तो अभी हम उसको नहीं कर सकते। तो बेहतर है उसको आपको नहीं देखना चाहिए। हाँ हम ये देख सकता है कि मेरा जो बेटा है बेटा को हमने पायलट तैयार करने के लिए प्रयास करेंगे। बेटा को पूछेंगे भैया बेटा यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। अगर वो बोले हाँ हम इंटरेस्टेड है उसको अपने सपना देखे क्या करेंगे हमारा सपना जो है वो आपको पूरा है। Yes, it is possible. Yes, it is possible. But for me, it is not possible. I can do through my son. I can do it through my brother or father. Yes, of course. So, what is it is mentioned that it is realistic. Next one, credible. Credible मतलब whether I can achieve it. Next one is called attractive. आपका विजन अभी देखा आपने कितना विजन स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाया? आईटीसी का दिखाया, डाबर का दिखाया, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी का दिखाया। हर स्टेटमेंट में आपने क्या देखा? It is very inspiring as well as attractive. Next one unique. आपका जो विजन स्टेटमेंट है वो क्या होना चाहिए? यूनिक। जितना विजन स्टेटमेंट आपका यूनिक होगा उतना ही अट्रैक्टिव होगा। ठीक है? उसके बाद क्या है? एप्रोप्रिएट। आपका जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है उसका साथ ही उसको मीट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपका मिशन पिछला 50 साल का पुराना होगा, 50 साल से पहले वो जो पुराना था वही आप रखोगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ जो मिशन तो ठीक है लेकिन उसका प्रेजेंट कंटेक्स्ट के साथ कैसे रिलेटेड। That's why I told you that every time you have to review and next one क्या है? It must be cultural. Now what is that cultural? Cultural means how much it is capturing that person's to giving by support as well as the aspirations. Next one motivational. आपने बोला था कि विजन स्टेटमेंट क्या करता है? So it is the motivation, right? And finally, what is that? Articulate. Means it should be very easy to understand. It must be very easy to understand so that everybody can understand that what is the vision statement. हमने एक विजन स्टेटमेंट बनाया जो विजन स्टेटमेंट जो है हमारा लेवल पर तो समझ में नहीं आया उसका क्या फायदा? विजन स्टेटमेंट को ऐसे ही बनाना चाहिए जो सबका समझ में आ जाए, सब लोग उसको समझ सकते हैं हाँ what is this and how you can implement it. तो ये था आपका विजन स्टेटमेंट। अभी हम लोग चलेंगे मिशन और विजन स्टेटमेंट डेवलप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है कंडक्टिंग विजन ऑडिट, नेक्स्ट वन आइडेंटिफाइंग द कंटेक्स्ट, नेक्स्ट वन डेवलपिंग द फ्यूचर सिनेरियो, नेक्स्ट वन टेकिंग एक्सपर्ट्स ओपिनियन एंड फाइनली चूजिंग द फाइनल। और समझो सबसे पहले क्या करना होगा बाबू?
ऑडिट में क्या होता है? विजन को ऑडिट करना होगा, मतलब क्या? आपका जो प्रेजेंट जो विजन है, ये विजन आपका राइटली फिट है कि नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसको ऑडिट करना होगा, इसको रिव्यू करना होगा, उसको देखना होगा ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? ऑडिट करना होगा, टू सी दैट यू नो हाउ मच इट इज राइट और इज देयर एनी थिंग्स वी नीड टू ऐड। ओके, इसके बाद हम चलेंगे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग द कंटेक्स्ट, what must be vision achieved, what are the boundaries and constraints, what critical issues must be addressed in the vision. That means you know what is the need, what is needed. जो भी मेरा पास विजन है, अभी क्या जरूरत है, उसको आपको चेक करना होगा। तो that is mentioned here, identify the context. So it is the context, present context में इसको क्या जरूरत है, ठीक है। कंटेक्स्ट आपने देख लिया, देन डेवलपिंग द फ्यूचर सिनेरियो, जिधर आपने जाना चाहता है डेस्टिनेशन, वो डेस्टिनेशन का सिनेरियो क्या होगा? मतलब इफ यू आर थिंकिंग लास्ट कमिंग 10 इयर्स, तो अभी क्या चल रहा है 2021, तो 2031 में क्या आपने देखने के लिए प्रयास कर रहे हो, उसको आपको सोचना पड़ेगा। because the COVID situation is going on, इसका बाद क्या होगा, इंडस्ट्री में क्या रेवोल्यूशन आएगा। अभी ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज आर ऑटोमेटेड इंडस्ट्री, तो अगले 10 साल में तो पूरा रोबोटिक हो जाएगा। तो उस टाइम आपका जो है, जो आपने धंधा आपने कर रहे हो, तो धंधा रहेगा कि नहीं रहेगा, और रहेगा तो किस रूप में रहेगा। So that scenario, that is called the destination scenario, that is scenario you have to develop. Okay, once your scenario is developed, then you can say, you know, when you are taking some kind of alternative scenario, not only scenario, you are developing the alternative scenario. A आ सकता है, B आ सकता है, C आ सकता है, D आ सकता है, ऐसे 4-5 आपका क्या करना होगा? alternative देखना होगा। ठीक है ना, फ्यूचर को देखा है, देखा नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अनुमान कर सकते हैं कि A होगा, नहीं तो B होगा, नहीं तो C होगा, नहीं तो D होगा। आपको उससे प्लान नहीं है, ये तो आप सपना देख रहे हो। ये अगला 2030 में, जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे, जे 2030 में हमारा कंट्री पूरा ऑटोमेटेड हो जाएगा, वही ना। उन्होंने कहा देखा था सपना आज से 20 साल। तो ये देखो, राजीव गांधी का नाम सुना होगा, जब कंप्यूटर लॉन्च किया था इंडिया में 1984 में, तो उस टाइम ना इंडिया में पूरा रेवोल्यूशन आ गया था। कैसे होगा? बिकॉज़ वी हैव सो मेनी अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें अगर कंप्यूटर लॉन्च करेगा तो सबका नौकरी चल जाएगा। राजीव गांधी बोले थे नहीं, इसमें नौकरी आएगा। और अभी जो सिचुएशन है, यस, एवरीबॉडी यूजिंग द सेल फोन, एवरीबॉडी यूजिंग द कंप्यूटर। विदाउट कंप्यूटर हम लोग एक स्टेप आगे देखो, सोचते। ओके, सो दिस इज कॉल्ड दैट ऑल्टरनेटिव सिनेरियो। ये ऑल्टरनेटिव सिनेरियो होने के बाद अभी नेक्स्ट क्या करना है? एक्सपर्ट प्रमाण लेना। हमने तो ये सोचा है A B C D, लेकिन उसमें कौन सा राइटली फिट होगा, ये कौन सा एक्सपर्ट है? That's why people are taking consultation with the experts. Okay? Now, when you got the expert's opinion, last one you can see whether it is A. You select the final one. This one is correct. So, what is the process to develop a vision? First is vision audit. मतलब जो विजन आपका अभी आपका पास है, उसको क्या करना होगा? रिव्यू करना होगा, ऑडिट करना होगा, देखना होगा कितना फिट है। उसके बाद क्या करना होगा? सिनेरियो डेवलप करना होगा कि हमको कहां जाना है और कैसे हमको बचना है। उसके बाद आपको क्या करना है? ऑल्टरनेटिव बनाना है। जो फ्यूचर तो कोई देखा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। उसमें हमने एक रखने से वो नहीं होगा, हमको 4-5 ऑप्शन रखना होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। Then I have to take some consultation from whom? Experts. उसके बाद कर लिया, अभी हम
are formulating their vision statement. ठीक है? When you are trying to formulate the vision statement, you have to do this exercise. लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जो जैसे फैमिली और बिजनेस है, जैसे JRD टाटा का जो विजन है, वो विजन कोई ग्रुप पीपल नहीं बनाया था. That was his own vision. और वो विजन में इतना अच्छा विजन है जो वो आज तक लोग चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है उसको चेंज करने. तो सोचो वो क्या है. So this is more than that. But what Dhirubhai Ambani observed and gave that vision, so now this Mukesh Ambani as well as Anil Ambani, they review this one and they make this vision little different also, because they said that there are some kind of revision is needed. समझ में आया? I explained to you what is strategic intent, then I have already explained to you that what is vision, and we also got that why vision. And then we observe that how we can the vision statement. We can just move to the mission now. Let's see what is mission. Mission का बात क्या आता है? Mission क्या हो? And what an organization is and why it exists. That means ये आपको बता देगा कि आप क्यों हैं मार्केट में. अगर IHM डेवलप हुआ है तो उसमें क्यों? What is the purpose? Is it profit earning? Is it giving service to the poorest of the poor? Is it giving some support to the tribal people? Is it giving support to the poorest of the poor in the state? So that is you have to understand that. If this organization is here, what is the purpose to make themselves existence in this particular? So what we can see, what an organization is and why it exists. You can see mission is the second level in the hierarchy of strategic intent. It describes the reasons for the existence of an organization. अगर एक organization है, उसका क्या purpose? Purpose of existence. यही याद रखो. Mission का क्या? आपको कहाँ जाना है? Where you have to go? Your destination. And mission is that what is your purpose of existence in this particular organization? Okay, तो जो step आपने देख रहा था, वो स्टेज वाला एक विजन को फॉलो करता है. जैसे आप अगर दिल्ली जाओगे ट्रेन में, स्टेशन आता है कि नहीं आता? डायरेक्ट नहीं आता है, नाइट डायरेक्ट आता है, लेकिन तो स्टेज बाय स्टेज आता है. तो एक एक स्टेशन आता है, एक एक मिशन आपका पूरा होता है, तब जाके आप दिल्ली पहुंच सकते हैं. तो मिशन इज व्हाट अल्टीमेटली इट इज गिविंग द सेंस ऑफ व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन exists in this particular situation. Okay, so according to Thompson 1997, you see mission is the essential purpose of the organization concerning particularly why it is existence, the nature of the businesses and it is in and the customer seeks to serve and satisfy. My dear friend, mission statement is a very specific and very concise. But in mission statement, you have to give some kind of statement that for whom you are doing business, who is your customer, what is your product, what is your technology, what kind of support you can provide to the nation. Everything you have to explain, because ultimately the question is why. Vision का where और what. तो एक आपको why जो है, इस why को देने के लिए आपको डिटेल में स्टेटमेंट को देना. Let's see some examples that what are the examples of the mission statement. You see that? आपने दावा का मिशन स्टेटमेंट भी लिखा था, ठीक है? अब देखिए इसका मिशन स्टेटमेंट क्या है. The word is that contemporize Ayurveda and make it relevant for the new generation. अब समझो क्या डिफरेंस है मिशन स्टेटमेंट में और मिशन स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट में आपने ये भी बोल दे रहे हो कि आपको पर्पस क्या है और आप किसके लिए काम करना चाहते हो. What is the target? New generation, because you people are not believing your Ayurvedic medicine. You want fast relief, and that's why you are very much fond of allopathic medicine. Lekin this allopathic medicine ultimately killing your lifestyle. So the whole mission is what? हमने तो आयुर्वेद मेडिसिन तैयार करेंगे, लेकिन आयुर्वेद मेडिसिन का साथ साथ हमने उसको टारगेट करेंगे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज करने के बाद उसका अच्छा है. And who is the target group? So it is mentioned in the
in a globalizing environment, delivering superior and sustainable stakeholder value. So this is the the complete vision statement for that company. अभी आपको क्या करना है, IDC का विजन स्टेटमेंट और ICTC का विजन स्टेटमेंट दोनों को साथ में रखना है और इसको अंतर आपको ढूंढना पड़ेगा. So what is the difference between the vision statement and the vision statement? Third one, you can see the Bank of Baroda. What was the vision of the Bank of Baroda? We know that. Now let's see what is the vision of the Bank of Baroda. To be a top-ranking national bank of international standards committed to augmenting stakeholders' value through concern, care, and purpose. What is the meaning of the vision statement? Should we state to everyone that what is the purpose of your existence? What is the purpose of your existence? Why you are in the market? हमको कहाँ जाना है वो तो विजन बोल दिया, लेकिन हम मार्केट में क्यों है? इसलिए कि वो स्टेटमेंट आपको बनेगा, उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? विजन. And this vision statement ultimately it is inspired by whom? By your vision statement. Vision statement का साथ vision का बहुत अच्छा लिंक रहना होगा, तब जाके ये आपको रिजल्ट दिखेगा. So first we understood what is vision, then we understood what is vision. Now let's see what are the important components are there in the mission statement. You see that what are the core components of mission statement? देखो सबसे पहले mission statement में हाईलाइट है वो कौन है? गवर्नमेंट कौन कस्टमर को टारगेट किया? ठीक है ना? अगर आप हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी पर देखोगे उनका टारगेट कस्टमर कौन है? नॉट अर्बन पीपल. Their main target is rural area, because maximum population staying in that area in the rural areas. Okay. So what we can see that what the customers farm, that is the first component of business statement. The second one is what? Your product and services. मतलब आपने जो product and services market में ला रहे हो वो क्या है? What type of product and services you are giving to your market? So that is the second component which should be made reflect in your vision statement. The third one is what? Marketing. Geographically, where does the farm compete? Whether in the rural areas, urban areas, or rural-urban, both areas. So that you have to be mentioned in your vision statement. Next one is technology. How much it is technology friendly? That also you have to reflect in your vision statement. Bank of Baroda में आपने क्या देखा? Technology is mentioned there, right? So that is, we can see the technology as another component. Next one, concern for survival, growth and profitability. That also you have to mention. What happened? Okay. So you see that next one is. You see, the concern for survival, growth and profitability is the firm committed to growth and financial soundness. That means, आपको मैंने क्या सिखाया, जो बजट है आपका फाउंडेशन में, तो आपको ये भी देखना होगा जो ऑर्गेनाइजेशन आपने कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके फाइनली साउंडनेस देना है कि आपका फाइनेंशियल में और not. I mean, is it profitable organization? Is it that organization can sustain himself? That also you have to reflect in your business statement. अगर समझो विजन स्टेटमेंट में वो तो नहीं जाएगा, तो आपको जब रिक्रूटमेंट होगा, आप सोचोगे ना कि आपका कौन सा ऑपरेशन में रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आपको क्या देखना है? आपको उस ऑपरेशन का मिशन देखना है और मिशन देखना है. अगर आप कहोगे कि ऑपरेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, आप ज्वाइन करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि उस ऑपरेशन में कोई फ्यूचर है ही नहीं. ओके. नेक्स्ट वन इज द फिलॉसफी. व्हाट आर द बेसिक बिलीव्स, वैल्यूज, एस्पिरेशन एंड एथिकल प्रायोरिटीज ऑफ द फर्म. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ क्या है, प्रैक्टिस क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमको कैसे पर्सनालिटी शेप कराएगा. दैट्स व्हाई बिफोर टेकिंग एडमिशन students are visiting their website and they are trying to understand that what type of value oriented this organization, because education you get from anywhere, but value oriented education you will get every institutions. Next one is what?
concern, and next one is concern for employees. Are the employees are valuable asset of the firm? देखो अभी आप टाटा का एग्जांपल, टाटा is whatever money is paid, there are so many scale organizations are there, they are also paying the same amount. But if I ask you that which organization you want to join, your first preference will be, you know why? Because we know the Tata is caring their employees, Tata also caring the society. There are so many corporate social responsibilities are there, and there are so many value systems is there, and that's why the employee of Tata is called generation to generation. This is why, because not only for money, their value system, their core values, their belief, their practices, how they care their employees. That is very, very important. So this, don't forget, I will give you this question in the classes, briefly explain the important components of mission statement. And that time, you have to mention all these 9 important components, and you have to explain that, why customer is an important, element or component of, the mission statement. Why product and services is an important, element of mission statement. So this is, you can just give an example, you can write one mission statement and you can explain. That look at this statement, where the customer is there, philosophy is there, technology is there, value is there, so everything is there, and then only this mission statement will be a form of mission statement. Sir, it's philosophy, ethical priorities. What are the basic beliefs, values, aspiration, and ethical priorities of the firm? Ethical priority means ethics means what? Whatever business you are doing, how much it is the right for your stakeholders. The ethical value. That means you are not creating anything which is hampering your total society or community or entire nation. Ethics means it is what? Right or wrong. Whatever I am doing, it is giving the right sense or wrong sense in the community or society. That is called the ethical priority. Okay. So this much, what we can see. Now let's see that, the next one, that what are the, the elements of that good mission statement. एक मिशन स्टेटमेंट को अगर हमको गुड बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले देखिए क्लियरली आर्टिकुलेटेड. The 5 Just let me finish this one and then we will do it. Okay. You see that the first one is called clearly articulated. That means when you make some kind of mission statement is must be clear to everybody. It should not be very lengthy. It should not be very high language. It must be very simple and precise. Next one, relevant. If you are writing some mission statement, it must be relevant. Next one, current. Of course, as I told you, अगर इतना पुराना होगा तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. It must be relevant to your current environment. Then written in a positive tune. आप जब भी mission statement लिखोगे, वो क्या एस्पिरेशन होना चाहिए. उसको हम हट में आपको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव ट्यून में रखना है. ठीक है ना? पॉजिटिव ट्यून. आपने कभी नुक्कड़ नाटक किया है? नुक्कड़ नाटक? Yes, sir. सुना है नुक्कड़ नाटक? हम लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं, थीम हम लोग लेते हैं. लेकिन हम लोग हर टाइम करते हैं कि क्या थीम ऐसे लेना चाहिए जो पॉजिटिव है. हम लोग हर टाइम नेगेटिव बोलते हैं, इतना खराब हुआ. उसमें क्या है? बिल्कुल और डर जाता है. लेकिन अगर हमने एक नेगेटिव पॉजिटिव ट्यून किया, हमने देखा है कि झारखंड का एक आदिवासी लेडी जो है आईएएस बन गया. अगर ये हमने एक्टिंग के रूप में दिखाएंगे तो बिल्कुल क्या होगा? मोर एंड करेगा. So that is called the positive tune. Okay. Next one is what? Unique. It must be unique, as we already know. Then enduring mission statements should continually guide and inspire and the challenging in the pursuit of its mission. And finally, adapted to the target audience. इसको हमने कस्टमर के रूप में टारगेट कर रहा है. मेरा इंटरनल कस्टमर है, एक्सटर्नल कस्टमर है. इंटरनल कस्टमर कौन है? मेरा एम्प्लॉई है. और एक्सटर्नल कस्टमर कौन है? मेरा यूज करता है प्रोडक्ट. उन लोगों को क्या करना होगा? और they should accept these issues. So these are the important elements of. तो इतना तो पहले हम लोग क्या देखा? मिशन देखा. मिशन देखा. अभी हम लोग को देखना है एक दो चीजों ऑब्जेक्टिव और एक छोटा सा केस करके है जो आपको देखने से आपको पता चल जाएगा कि मिशन कैसे ऑर्गेनाइजेशन में ठीक होता है. ओके. So now we can take 5 minutes break.
सर नोट्स आपने नहीं डाला सर। देंगे आज आज निकाल सकते हैं। आपका ग्रुप बना हुआ है, हम निकाल देंगे। So should I arrange for your lunch I have lunch. and for madam? Madam, she will come say around 1 o'clock. So should we keep the lunch for? No, she will bring her lunch. Tomorrow. You said you need break, but you are still here. आपको हम कहाँ लेकर आए? तो वही समझ में आ रहा है आप सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे क्या? I don't know. It was similar. Not similar. She was my student in St. James. And then she completed her MBA from science. Now she is in some organization doing program. No, I'm telling about your face. Your face. There's very much math in that girl. I am not recollecting that name of that girl. I understand she's from us. Yes. Just go and come back. Okay, please. Admission is, you see, very simple. आप इसको complete करोगे। इस साल में आपका complete होगा क्या अगला साल? देखिए। हाँ। तो आप क्या करोगे? 22 में नहीं 22 में नहीं 21 इस साल में आपको जैक में रखना है। जैक, कैट और सी। जैक, कैट और सी। तो आप इंटरनेट पे लिखो। तो नवंबर में होता है आपका कैट और जनवरी में होता है जैक और आपको लगता है इस साल थोड़ा लेट हुआ था फरवरी में होता है इसमें। अभी सेंस में सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स जो है वो एचआर। हाँ, इसके लिए आप लोग मतलब मानने के लिए इतना मतलब डिमांड है। हाँ, नेक्स्ट है आपका फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग है, आईटी है, रूरल मैनेजमेंट है। तो अगर आपको एचआर लेना है तो आपको कम से कम 70% आपको मिलना होगा। क्या चाहिए सर? ग्रेजुएशन नहीं, कैट और जैक और सीना इसमें जो कट ऑफ जो है वो 70 का नीचे मिला। एक तो जिसमें आपको मिले तीनों देता है बच्चों लोग सर एक्सएलआई जाता है। हाँ, एक्सएलआई और कैट तो दुनिया में पूरा इंडिया में होता है। सर एक कैट इजी है, कैट में आपको देना चाहिए, कैट में आपको मिल जाए। हमारा तो 7-8 बार 10 बार है ना, एक्सएलआई भी हमारा है, एक्सएलआई हमारा है, एक्साइज भी हमारा है, दिल्ली भी इसका है, मुंबई में है, गोवा में है, चेन्नई में है। This is, this is very acceptable fees. We are taking only 8 lakhs fees. This you are giving 5 lakhs fees, and for a PG course we are taking 8 lakhs. And the bank loan is कोई भी बैंक जब आप इसका कोई चांस मिलेगा, any bank will be able to provide. पैसा का प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है आपको और होटल मैनेजमेंट का बहुत स्टूडेंट आता है and they are getting very good job. Especially that the student from I got 3-4 students from that this similar kind of institute in Calcutta. Calcutta में जो institute है ना, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कैटरिंग टेक्नोलॉजी जो है, very famous. यहाँ आपको कम
क्या हुआ उसका हुई हो गया ना एक है आपका इशारा हो गया वहां पे होटल मैनेजमेंट सबसे ज्यादा एक है Why you people are getting this much of tiredness within a short time? More than 50 years. You know, we are taking this. I'm taking it from morning to the we are not getting bored of this. Actually, we are not sleeping properly, sir. Why? Because we need to break many of the PPTs and also. What products do they? Some business model, class, projects. As you are taking the class, you are also taking the class of ours. Next, electroconnecting class, we are making the PPT. Then you are teaching us. Now, we are also making PPT and teaching our friends. Is related to each others. Yes, sir. Because it will help us with the communication skill, it is also a skill which will be required during our work. We will become related to these. देखो बिजनेस करने के लिए नौकर तो कोई भी बन सकता है जैसा लेकिन अगर सोचो आपको एक छोटा सा धंधा करना है तब तो आपने कुकीज खोलोगे कुकी जो है ना आपने थोड़ा सा स्टार्ट करोगे एक बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसके लिए ये जो प्रोसेस आपको हम लोग सिखा रहे हैं इसको अगर आप सीखोगे ठीक से जैसा कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं आएगा एक ही चीज जो है आप सीख रहा है और इसीलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है ना वो एक तो बिजनेस को सिखाता है बिजनेस को सिखाता है अब आपने जो स्ट्रीम में हो मार्केटिंग में हो एचआर में हो कि आईटी मैनेजमेंट में हो कि फाइनेंस में हो ये आपको दिखाएगा दिशा दशा कैसे जाना है ये तो अप्लाई नहीं करता सबको प्रोसेस है बिजनेस मॉडल बना रहे अभी देखो अभी क्या हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना है थैंक्स समोर द स्टोर जो गांव देहात में होता है 10 लड़की एक साथ मिलकर अच्छा हाँ एसएसजी जो सेल्फ हेल्प तो अभी गांव देहात में बढ़ गया नबार्ड इसको हो गया लेकिन ये लोग क्या है कि ये लोग लोन नहीं दिया थोड़ा थोड़ा धंधा भी स्टार्ट करा दिया लेकिन इसको तो पता ही नहीं था धंधा करना कैसे जो बिजनेस प्लान है वो है ना उसे विजनरी सबसे पूरा जो बिजनेस प्लान रहेगा ये बना नहीं था तो इंडिया में तो अभी रिसर्च है 92% सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्लॉप अभी सोचो आप नेबार्ड को कितना नुकसान हुआ कितना लोन दिया होगा लोन तो भी दिया इंटरेस्ट भी चले गया वो जो पहला बार कितना मुश्किल से जो वो लोग ने समूह बनाया था वो भी चले गया कुछ भी नहीं इसको पहले से ट्रेन नहीं किया गया था अभी हमारा अभी सेल्स में आगे गवर्नमेंट बोल रहा है गवर्नमेंट बोल रहा है यू टेक दिस वन एंड डू सम काइंड ऑफ चेंजिंग फॉर दिस पीपल आई एम रेडी टू पे लेकिन हम लोग उसको पता बोले थे नहीं इसको नहीं चाहिए क्योंकि उसमें दुनिया भर का जो है वो लोग शुरू कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है गवर्नमेंट स्टार्ट होता है बहुत जल्दी लेकिन उसका बाद उसका आधार पता नहीं भी सब गला पड़ता है मोटर in this this that finish it by 12:45 Yes,
कर दो बाबू। आ गए सब लोग? हेलो। Okay, so you see that as we already observed that mission statement के लिए एक process जो है मैंने आपको दिखाया था. Similarly, to prepare the mission statement, we have a different process that different organizations are following, right? You see that in many cases founders establish the mission which may remain unchanged down the years or may be modified in the condition change. Follow. फाउंडर मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, उन्होंने कुछ मिशन तैयार कर देते हैं और वो मिशन चलता है और कभी कभी उसको चेंज करता है जो आपका कंडीशन में और एनवायरनमेंट में चेंज होता है. दूसरा क्या है, engaging consultant for drawing up mission is not uncommon. That means sometimes organization hiring some experts. Say for example, दादा में एक कंपनी है जो आपका बैटरी तैयार करता है, तो उस कंपनी एक बार हम तो 3 आदमी को हम लोग को लेके गए थे कलकत्ता में और 15 दिन हम लोग एक्सरसाइज करके उनका मिशन स्टेटमेंट बना. One from exercises, one from IMRC and one from Excel. 3 people हम लोग के और जाके जो लोग थे वो लोग एम्प्लॉई जो है जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ हम लोग 15 दिन 15 डेज हम लोग एक्सरसाइज किया और उसके बाद उनका मिशन स्टेटमेंट है तो हम लोग नहीं बनाया, हम लोग सिर्फ उसको फैसिलिटेट किया, दे दिया लोग. Just you facilitate. So this is your vision. What will be your vision? Okay, what will achieve your vision? So, और क्या है, many companies hold brainstorming session of senior executives to develop mission statement. उन लोग क्या करते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उन लोग को लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब सेशन चल रहा है, यस कंटिन्यूअस सेशंस देते हुए वो लोग क्या करते हैं, उनका अपना मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं. So this is and the fourth one is soliciting employees' view is also not uncommon nowadays. As I told you that day, there are 3 levels are there. If you see that this is an organization, ये है आपका corporate level, ये है आपका business level. आपको पता है इसमें कितना % पॉपुलेशन रहता है? 5%. ऑर्गेनाइजेशन का 5% पॉपुलेशन रहता है इधर रहता है 15% और इधर रहता है 80% पॉपुलेशन, है ना? डाउन को जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जो ऑफिसर्स है, इंजीनियर्स है, सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव है, ये सारा दुनिया भर का जो है आदमी है, कहां है लोअर लेवल. तो ये अगर समझ में ये दोनों ने बना लिया सब कुछ और इसको कुछ पता ही नहीं हुआ है, तो अल्टीमेटली जो विजन जो भी बन रहा है किसके लिए, यही बंदा जो उसको फॉलो करेंगे, ये बंदा उसको एक्टिवेट करेगा, लेकिन अगर उसको ही पता नहीं है तो कैसे चलेगा. इसीलिए लास्ट में क्या लिखा है, soliciting employee views is also common. You can involve and engage lower level people also. तो विजन स्टेटमेंट ये जो है इधर से आना है नीचे तक, ये इधर से जाना है ऊपर तक, तब जाके विजन स्टेटमेंट. तो व्हाट इज विजन, हम लोग देख लिया है, बेसिस को बनाना है वो भी हम लोग देख लिया है. अभी वेरी क्विकली हम लोग को देखना है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. You see, goals and objective refers to the end result which an organization strives for. These two terms are used interchangeably, but strictly speaking, goals are different from objectives. What is that? Goals represent what an organization wishes to accomplish
स्मार्ट। स्मार्ट स्मार्ट का मतलब क्या है? Specific, measurable, attainable, time bound. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, in the sense of, in the context, it is very much generalized. But when we see the objective, it is very much specific, measurable, attainable, realistic, and time. Lagi apa? Papua. जल्दी करो, जल्दी करो। Okay, and it is that we will see that structure that how it is related to each other. Now here you can see the goals are mainly generalized and qualitative, whereas the objectives are more specific and quantifiable. Objectives are measurable and comparable and operationalize the goals. Objectives have a short-term orientation, where goals are mainly long-term. तो कभी-कभी क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम लोग गोल मानते हैं, और जो शॉर्ट टर्म होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव मानते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डिलेमा है कि ऑब्जेक्टिव गोल को फॉलो करता है ना गोल ऑब्जेक्टिव को फॉलो करता है, बिकॉज़ एज पर द हायरार्की इफ वी जस्ट सी दैट व्हेन द विजन इज कमिंग, विजन का बाद आता है विजन का बाद आता है ऑब्जेक्टिव का बाद आता है गोल, क्योंकि गोल ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्टिव गोल को भी सपोर्ट करता है। So that is a little what's the dilemma, but here the example is telling very clearly. What is that? If profitability is our goal, objective may be 25% return on investment. So मेरा गोल क्या है? हमको प्रॉफिट करना है, लेकिन इसके लिए हमको ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी काम हम करेंगे उससे 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एकदम आना आवश्यक है। वो तो है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको बोला जो ब्रॉडर सेंस में होगा वो तो आपका गोल होगा, लेकिन जो आप उसको अचीव करने के लिए जो आपने स्टेप तय किया वही आपका ऑब्जेक्टिव होगा। So yes. So what happens? You see that example is very clear. If your goal is to earn profit, so definitely to profit को earn करने के लिए जो गोल आपका है उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको छोटा-छोटा ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा, और वो ऑब्जेक्टिव आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, जैसे 25% आपको अचीव करना होगा रिटर्न इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल लेते हैं आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा, तब जाकर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपका किसमें रूपांतरित हो जाएगा? गोल में। बात समझ में आया? सो देखो कितना सारा डिविजन्स है, पहले तो है डिवीजन, उसके बाद है विजन, उसके बाद है आपका गोल वर्किंग एंड कंसीडर, देन यू कैन कंसीडर ऑब्जेक्टिव, देन यू कैन कंसीडर। जब हमारा जो ऑब्जेक्टिव सेट होगा तो जरूर हमारा कुछ एक्टिविटी आएगा, कुछ टारगेट आएगा, और टारगेट के आधारित हमको कुछ एक्टिविटी करना होगा, लेकिन कितना एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसको डिसाइड करेगा कौन? हमारा सिस्टर का मैरिज है, उसमें आने कितना आदमी को इनवाइट, मेरा विजन तो बहुत बड़ा है, रांची का पूरा आदमी को हमने आमंत्रित करना है,
what is your vision, what is your goal, and what is your objective. Now the main features of objectives are the reason for an organization existence. Objectives are multiple. Objectives are different levels of organization, constitute a hierarchy of end means. Higher level objectives are aims and the lower level objectives are the serve as a means. So means and aim. Okay, तो goal क्या हो गया? End हो गया. और objective क्या हो गया? Means हो गया. तो ये goal दोनों एक साथ मिक्स था. एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है. जैसे आपको समझो, अगर आपको इसमें ग्लोब बनाना है, ये जो गोल जो है, ये है आपका गोल और ये है आपका ऑब्जेक्टिव. दोनों एक साथ रहता है. बहुत क्लीन ब्रदर्स और क्लीन सिस्टर्स. एक है मींस, एक है एम्स. मींस एंड एम्स. In the context of what? Vision and mission. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, ये बहुत अच्छा से हम लोग इसको बताओ इसको क्या आप समझते हैं. सबसे पहले क्या है? समझो, ये है आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट. हम लोग इतना टाइम विजन सब कुछ पढ़ रहे थे, तो आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए था, सर तो फिर स्ट्रैटेजी पॉलिसी कहाँ है इसमें? हम लोग तो इतना विजन ढूंढ रहा था, लेकिन उसमें पॉलिसी स्ट्रैटेजी कहाँ चल जाए, कहाँ से स्टार्ट होगा वो? ये देखिए, जब आपने विजन डिसाइड कर लिया, जब आपने मिशन डिसाइड कर लिया, जब आपने कुछ वैल्यू तैयार कर लिया, जब आपने उसका गोल भी बना लिया, आपने ऑब्जेक्टिव भी बना लिया, लेकिन इसको अचीव करोगे कैसे? तो आपको तो कुछ प्लान तैयार करना होगा, कुछ तो पॉलिसी डेवलप करना होगा. करना पहले तुम उसको कर पाओगे. उसमें क्या होगा? वो जो प्लान आपने बनाया उसको बोलता है एक्शन प्लान. उसमें क्या है? 6 ब्रदर्स है, 5W1H. एक्शन प्लान बनता है. वो एक्शन प्लान जो बनता है, प्लान तो है लेकिन एक्शन प्लान तो हाथ में करना है, जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है. वो क्या है? 5W and 2H. बताओ ये 5W and 2H क्या है? Who, what, where, why. हो गया. 2H, how and how much. देखो, 5W and 2H. जब भी कोई प्लान तैयार करोगे, प्लान को अगर इंप्लीमेंट करना है, इस पार्ट हाई लेवल और एक टेबल बना. फर्स्ट आएगा व्हाट, क्या करोगे आप? व्हाट का बाद आएगा व्हाई, क्यों करोगे आप? नेक्स्ट आएगा व्हेन, कब करोगे आप? नेक्स्ट आएगा वेयर, कहां करोगे आप? और लास्ट में कौन है? हु. करेगा कौन करेगा इसको? इतना हो गया. अभी बाकी 2 एज को लेकर आपको ध्यान होगा कि क्यों करेंगे हम इसको, हाउ और हाउ मच. ये अगर आप तैयार कर लिया तो आपका प्लान सही है. And then you can say that yes, my plan is smart plan because I know everything and I am prepared. कब करना होगा, क्या करना होगा, कौन करना होगा, कौन करेगा, क्यों करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करके हमने रखे हैं. आप एक प्लान करना. अगर आप इसको फॉलो करोगे जिंदगी में कभी आप फेलियर नहीं होगा. तो बहुत समझ में आया? यस. तो गोल का बाद आता है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का बाद आपको तैयार करना होगा. अभी आप बोलोगे सर इतना देरी का बाद, यस, तो आपका पूरा गाइडिंग प्रिंसिपल है. ऊपर में जो है तो गाइडिंग प्रिंसिपल है, लेकिन अल्टीमेटली करना होगा. करने के लिए आपको क्या तैयार करना होगा? आपको एक स्ट्रैटेजी तैयार करना होगा, आपको एक प्लान तैयार करना होगा. और स्ट्रैटेजी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान. और वो प्लान को रूप देने के लिए आपको एक्शन प्लान बनाना होगा और 5W2H को इम्प्लीमेंट करना. अभी देखिए प्लान का बाद क्या आता है?
तो कैसे आपने इसको जज करोगे? विजन, गाइड एंड फॉर्मुलेट विजन, मिशन, गाइड एंड फॉर्मुलेट गोल, गोल, गाइड एंड फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, गाइड एंड फॉर्मुलेट पॉलिसी, पॉलिसी, गाइड एंड फॉर्मुलेट टारगेट। अब आगे नीचे से जाओगे। अगर आप बोलोगे सर इतना टाइम क्यों लगता है तो आपका मतलब नहीं है। यस सर, हम तो इसको आधा घंटा में खत्म कर सकते हैं, आपका मतलब नहीं है। Not experts, we are learners. We can learn from them. Okay, we will be there the last part, the strategic decision making. और ये strategic decision making मैंने आपको बोला, इसको strategic decision making क्यों बोला जाता है? Because it is so complex. You cannot change every time. Once you develop this one, you cannot change every time. Follow. You cannot change every time. So that's why it is called very complex. You see, the strategic decisions are complex in nature. Strategic decisions at the most topmost level are starting as the deal with the future and involved in a lot of risk. Strategic decisions are different from all administrative as well as operational decisions. There are three modes of it. देखो इसको strategic decision क्यों बोला जाता है? देखो, takeover of Cora Steel by Tata Steel, ITC's entry into the food products, decision of Tata Motors to launch nano car are example of strategic decision. Once हम इसको ले लिए, समझो टाटा को कितना नुकसान हुआ होगा इस बात का। और आदमी ऐसे नहीं होता उतना पड़ Here loss, here gain. समझो अगर दूसरा वर्ष होता तो आपका क्या हाल होगा? strategic decision में अगर कुछ गलत हो गया और अगर वो ठीक हो गया तो आप टीम नहीं, ये बहुत बड़ा गेम है। लेकिन हाँ, हमने आपको क्या सिखाया? रिस्क तो लेना है। अगर आप डर जाओगे तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमको वो भी देखना है कि उतना रिस्क हम लेंगे जिसमें हम रिवॉर्ड ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखो इसका 3 मोड है। लास्ट स्लाइड, उसके बाद हम लोग जाएंगे एक केस स्टडी में। 3 मोड है, एक है एंटरप्रेन्योरियल मोड, एक है आपका प्लानिंग मोड और आपका नेक्स्ट वन है आपका अडैप्टिव मोड। तो एंटरप्रेन्योरियल मोड में क्या है? देखिए, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच फोकसेस ऑन एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज अगेंस्ट एनवायरमेंटल ऑड्स और हॉस्टिलिटीज। पावर रेस one person who can take the organizations to great heights. Example आप देखो, Michael Dell, Dell Computer, then Bill Gates, Microsoft, Dhirubhai Ambani, Reliance, Azim Premji, Wipro. Decision made by them are unorthodox and path-breaking. Therefore, their organization outperform the competitions. However, if the strategy makes lack of necessary intuition and vision, their organization are likely to be very bad. ये तो उनका जो विजन है उनके साथ सेम हो गया था, इसीलिए ऑपरेशन खड़ा हो गया। लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता तो ये ऑपरेशन अभी मार्केट में नहीं होता। तो सोचो आप, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, माइकल डेल, ये लोग कितना विजनरी है। लोग जानते हैं अगर 10 साल में मार्केट में क्या होने वाला है। तो सर एक कोई फ्यूचर तो क्या देख सकता है? ये लोग देख सकते हैं। That's why they are great people. क्योंकि विजनरी सब लोग नहीं हो सकते। बहुत कम है। तो what you play? Everybody cannot be a visionary. तो 2 वर्ड है और एक है लीडर, एक है मैनेजर। अंतर है। Yes sir. सब लोग लीडर नहीं बन सकते और सब लीडर मैनेजर नहीं। भाई आप लीडर है लेकिन आप मैनेजर नहीं। अगर मैनेजर है लेकिन आप लीडर नहीं। उसी लिए कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स
ठीक है, तो ये हो गया पहले एंटरप्रेन्योर मोड। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड प्लान स्ट्रक्चर अप्रोच, जो हर टाइम में प्लान प्रोग्राम करते हुए वो लोग डिसाइड करता है कि करना क्या होगा। जैसे हिंदुस्तान लीवर है, ये लोग कोई बड़ा विजन लेके नहीं चलता है, वो लोग एकदम छोटा-छोटा विजन लेके चलता है और डिस्कस करता है हर लेवल में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, एंड देन दे डिसाइड दैट which market will go and what type of product will be that and whatever they are doing, that they are doing it is in participatory way. So that approach is called what? So first approach is one that entrepreneurial. Second one is what? Plan structure approach. Last one is called adaptive approach. What is that? Adaptive approach is essential in balancing strategy. It is more remedial and reconciliatory and therefore more reactive than the proactive as a decision making process. An attempt is made to adapt the organizations to change in the environment. The final decisions are largely companies due to compromises due to pressure from several stakeholders from conflicting. Whereas this approach typically suits large public sector companies like NTPC. Adaptive mode मतलब क्या है? जैसे ONGC, NTPC, ये लोग का उसका विजन में उसको होना ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? ये लोग देखते हैं कि कौन सा पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट है, सक्सेसफुल, तो उसको आपने फॉलो कर। आपका देखो आप कौन सा बैच है इंस्टीट्यूट का? आपका कोई ना कोई टॉपर बने, जो भी ठीक है, आप नहीं आएंगे तो आप बात ये है जो भी टॉपर होगा नेक्स्ट बैच जो है उसको बच्चा रहेगा जो सोचेगा कि मेरा अगला पहले टॉपर कौन था, हम लोग स्टूडेंट्स कुछ लेक्चर बदल रहेगा, वो बोलेगा कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ फॉलो करना है। वो क्या करेगा उसको बट इसमें जो 100% सक्सेस आएगा नहीं है कि ये है और वो है, ऐसे भी हम ये नहीं बन सकते। तो इसमें रिस्क है, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है वो लोग सोचता है कि हम लोग का जो बेस्ट मॉडल है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग समझ में आया? थ्री मोड है आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन में। एक है आपका एंटरप्रेन्योरियल मोड, एडप्टिव अप्रोच क्या है, जो बेस्ट फिटेड है उसको हम फॉलो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। और प्लान स्ट्रक्चर जो है जो हम लोग सब काम के बैठ के पार्टिसिपेटरी सिस्टम को देखिए कि हम लोग आगे कैसे बढ़ना है। और जो एंटरप्रेन्योर है, जो गुरु जो बोला है वही करना है। सारा तीनों में भी रिस्क है, देखो तीनों में भी रिस्क है, लेकिन तीनों को भी पॉजिटिव है। अभी आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको ठीक है। चलिए अभी एक छोटा सा केस देखते हैं, ये सब कुछ स्टडी करते हैं बिकॉज़ स्टडी मैनेजमेंट विदाउट केस इट इज नॉट पॉसिबल। सो एनीवन कैन रीड दिस केस वेरी प्रॉपर, हु कैन आपको इसको प्रॉपर कुछ नहीं है, ये केस है, ये आपको हम देख सारा किताब आप बिलीव करते हैं जितना देंगे उतना यहाँ तो पड़ेगा। Arvind Eye Hospital. गौर से सुनो, गौर से सुनो। After his voluntary retirement from Government Madurai Medical College at the age of 50, ophthalmologist Dr. V decided to change the game. He started Irvin in 1976 with just 20 beds and 3 licensed surgeons, his sister, her husband and Dr. V himself. By 1992, the hospital had grown into one of the largest, most effective and most innovative health centers in the world with under 250 staff. Dr. V's vision was to clear the backlog of 20 million blind eyes in India. But despite performing 1.2 million cataract surgery a year, another 2 million Indians falls victim of color blindness. His vision was to eliminate needless blindness by providing compassionate and high quality eye care. Irvin
Irving main hospital, like the vast majority of hospitals worldwide, charged patients for service ranging from cataract surgery (ICCE) to retina detachment repair. The beauty of Irving's system was that the free hospitals sat proudly just one block away. Crowded but clean, patients received the same attention that Irving paying customers do: vision recording, preliminary examination, testing of tension and tear duct function, refracting testing, and a final examination. And yet, virtually every surgery performed at the free hospital was just that free. By 2013, Irving operation included a chain of 7 eye hospitals with a combined strength of more than 4,000 beds, a network of outreach centers in the state of Tamil Nadu, and a complete integration of its process and resources. In the year ending March 2012, over 2.8 million outpatients were treated and over 350,000 surgeries were performed, making Irving the single largest enterprise providing eye care in the world. In 1993, the Indian government receives a $120 million loan from the World Bank to supply hospitals with equipment to increase the quality of country healthcare services. 6 years later, the number of cataract surgery increased threefold to 3.5 million. For Dr. V, this was not enough. He wanted to perform 8 million operations per year. He wanted to eradicate curable blindness by 2020, an issue afflicting over 40 million people around the world. Today in Bangladesh, Professor Muhammad Yunus has adopted the Irving model and is championing Dr. V. Kaus with the Grammy Eye Hospital, a social enterprise offering quality medical treatment with a variable pricing structure. Dr. V, a visionary who dedicated his life to marketing cataract surgery the same way as McDonald's sells hamburger, passed away in 2006. His legacy lives on this day from April 2009 to March 2010. Irving treated over 2.5 million outpatients and successfully performed over 3 lakh surgeries. Question is that, what makes this organization unique? एक डॉक्टर अपना प्रोफेशन में 50 साल का उनका ऐसा था, उन्होंने उनका फैमिली में 4 डॉक्टर थे, उनको लेके 20 बेड का छोटा सा हॉस्पिटल में, और ये प्रॉफिट के लिए नहीं चले, वो सोचते थे हमारा भारत में जो प्रॉब्लम है आएगा, उसको ऑपरेशन के लिए इतना पैसा चाहिए, आदमी लोग लाइन हो जाता है, उतना कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्यों ना हमने कुछ करा। उन्होंने 20 बेड लेके स्टार्ट किया था चेन्नई, और धीरे-धीरे वो बढ़ते गए, और जो आदमी लोग को उन्होंने ट्रीट कर रहे थे कंप्लीटली फ्री, लेकिन उसमें 2 क्लासिफिकेशन था, एक अमीर आदमी के लिए, एक गरीब आदमी। अमीर आदमी के लिए 4 था, गरीब आदमी के लिए 3 था, लेकिन इसमें क्या होगा, उसमें एक सर्विस का कोई अंतर नहीं था। अगर अमीर आदमी जो आपको पैसा देके रहा है, अगर उसको भी एक अंडा मिल खाने के लिए गरीब आदमी है, वो फ्री में ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसको भी एक अंडा, और उसका बाद धीरे-धीरे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बनते रहा है। क्या डॉक्टर वी टुडे किसी बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस का नाम सुना है आपने? He got the Nobel Prize for the Grameen Band, मोहम्मद यूनुस। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का बारे में मैंने आपको बताया, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ग्रामीण बैंड है, ये ग्रामीण बैंड कॉन्सेप्ट लेके मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से नोबेल प्राइज मिला था। तो he observed that this model is very unique, and he started this model in the village. And what he did, you see, in Bangladesh, Professor Muhammad Yunus has adopted the Irving model and is champion of Dr. V's cause with the Grameen Eye Hospital, a sectoral enterprise offering quality medical treatment with a variable pricing structure. तो अभी है उनके लिए अलग है, गरीब है, सेवा में नहीं, इसमें पैसा है। अभी जो है, डॉक्टर वी का
क्या लिखा लास्ट में? Dr. V, a visionary who predicted his life to marketing cataract surgery the same way as McDonald's sales passed away in 2000. His legacy lives on the day from April 2009 to March 2010. Arvind treated over 2.5 million outpatients and successfully performed over 3 lakh surgeries per year. आप कुछ गलत देते तो हम लोग को अच्छा तो गलत जिसका हम आपको देगा नहीं लेकिन इसमें ये जो केस स्टडी है इसको हमने क्या समझना है why this organization is so unique, what makes this organization so unique? What is that? ये organization क्यों इतना successful? What is that? तो सपना क्या था? हमारा देश में जो गरीब आदमी है पैसा का कारण उसको आय चल जाता है वो देख नहीं सकता है उसको आराम से बात करता है इतना बड़ा सपना था और वो सपना लेके एक छोटा सा 20 बेड का हॉस्पिटल अभी वर्ल्ड क्लास एक हॉस्पिटल है अगर आप चेन्नई में जाओगे तो आप देखोगे जो अरविंद राय हॉस्पिटल जो है दिस इज वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल कहां से बना था 20 बेड छोटा सा कॉर्नर से बस हर चीज थोड़ा से होता है धीरे इसको जैसे प्लांट का आप देखोगे आप पहले छोटा रहता है उसको धीरे बड़ा बड़ा पेड़ बन जाता है जहाँ पे ऊपर बारिश आता है धूप आता है हम लोग उसके नीचे जाके तो खून हम लोग ले सकते हैं ऑक्सीजन हम लोग ले सकते हैं कितना सारा बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं तो बस व्हाट हैपेंड टुडे व्हाट वी लर्न that each and every person must have some kind of vision or to achieve this vision you have to have some kind of mission कश्मीर आपको कश्मीर को देना विजन क्या था विजन है यूनाइटेड इंडिया इज आवर विजन उसके लिए विजन क्या है विजन कश्मीर कश्मीर को देखना पड़ता है कश्मीर को हमको रखना होगा विजन है ये इसका ये चल जाएगा तो इसका क्या बचेगा और हमारा इंडिया का मैप देखोगे अगर इसका ये क्या है जम्मू है 370 आर्टिकल वो क्या होगा वो एक ऑब्जेक्टिव बन गया एक स्ट्रेटजी बन गया आपको तो प्राइमरी एग्जांपल तो देखना so my friend we have to have some kind of vision we have to have some kind of mission we have to have some kind of goals we have to have some kind of objectives and then we can make sure this objective is set with our policy and strategy है ना उसमें आपको मैं क्या बोला उसका बात आता है टारगेट एक्टिविटीज उसमें क्या है 5 डॉक्यूमेंट्स 2H कौन करेगा कब करेगा कैसे करेगा क्या करेगा सारा चीज में लिखा है उसका बात आपको इसको नीड्स को मेंटेन कौन करेगा तो नीचे कौन है बजट अगर जो बजट है उसका आधारित आपको अगर आप इसको कर पाओगे तो आपका जो पॉलिसी है स्ट्रेटजी जो आपने तैयार करेगा सोच रहे हो तो फर्स्ट स्टेज क्या था आपका ये में एसएमई में